Good evening, brothers and sisters. Again, आपको गुड इवनिंग। I feel privileged to join with you again. ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं फिर एक बार आप सबके साथ जुड़ पाया। I was reading something in John chapter 21. और यूहन्ना उसके 21 अध्याय में मैं कुछ पढ़ रहा था। I would like to read from verse 3. और तीसरे वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। Simon Peter said to them, I'm going fishing. और शमन पत्रोस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। And they said to him, we will also come with you. और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। Yeah, I was thinking about this attitude or situation where disciples were. और इस परिस्थिति या इस मनोभाव के विषय में मैं सोच रहा था जिस परिस्थिति में ये सारे शिष्य थे। They were so exuberant to begin with Jesus 3.5 years back. और 3.5 वर्ष पहले यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ करने के लिए वे बहुत ज्यादा उत्साही थे। When they saw, they were so amazed, and they left everything and started following Jesus. और जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो इतने अचंभित हो गए कि सब कुछ छोड़कर वो यीशु के साथ चलने लगे। Jesus appreciated that. और यीशु मसीह ने उस बात की सराहना भी की थी। They had their own imaginations and expectations. और उनकी अपनी कल्पनाएं थी और अपनी अपेक्षाएं थी। Because they could not understand all that Jesus said. क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह कहता था वो सारी बातें वे नहीं समझ पाते थे। It can happen to two category of people. और ये दो तरह के लोगों के साथ हो सकता है। There are children and teens and young people in our midst who are not born again. और हमारे बीच में बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, जवान हैं, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। They are in this kind of a situation where Peter and others were. वे भी इस प्रकार के परिस्थिति में है जहां पतरस और दूसरे अन्य लोग थे। They may have attended a lot of meetings and heard from parents, ritually attended all the prayers at home. और शायद उन्होंने कई सभाओं में हिस्सा लिया है, उनके माता पिता को सुना है, कई सभाओं में वो आए हैं, एक रीति रिवाज के समान सारे प्रार्थनाओं में हिस्सा लिया है। Maybe somewhere along the line, they are not able to get what those who are born again are saying, or what they are hearing in the church. शायद कभी कभार वो ये नहीं समझ पाते कि जो नया जन्म पाए हुए लोग क्या कह रहे हैं, या कलीसिया में जो वो सुन रहे हैं उसको वे नहीं समझ पाते। So they are confused. Should I lay down my life for this or continue, or shall I go fishing? और फिर वो यही सोचकर इस कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या मैं अपने जीवन को इस बात के लिए छोड़ दूं, त्याग दूं, या मैं भी जाकर मछली पकड़ूं। Fishing means shall I pursue after my own life? मछली पकड़ने का मतलब है क्या मैं अपने ही अनुसार अपने ही जीवन को जीऊं। So like all the others in the competitive world, they are doing. और जैसे इस प्रतियोगिता के संसार में बाकी लोग करते हैं वैसे। So it can be same situation. Just a second. Something like that among believers also been following the Lord for some time, and there could be a situation where they feel that all that they expect is not happening. और यही परिस्थिति विश्वासियों के साथ भी हो सकती है कि कुछ समय वे प्रभु के साथ चलने के बाद जो वे चाहते थे या जिस बात की अपेक्षा वे रखते थे वो नहीं हो रहा। Then there is a situation where should I continue pursuing this kind of life as a disciple, or shall I just give in to the situation? फिर एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां एक प्रश्न आता है, क्या मैं अपने शिष्य होने के इस जीवन में
वैसे ही जारी रहूं, चलता रहूं, या मैं इस परिस्थिति से हावी होकर छोड़ Yeah, I'll stop pursuing vigorously. कि पूरे दिल से, उत्साह से जो मैं पीछा कर रहा था वो मैं छोड़ दूं। So such was the situation with Peter. और पतरस के साथ बिल्कुल यही परिस्थिति थी। And then verse 4, when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. और फिर चौथे वचन में, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो ये यीशु है। This is a beautiful picture. I would like to keep before me and also encourage you all to keep it. और ये एक सुंदर चित्र है जो मैं अपने आप के सामने रखना चाहता हूं और आपको भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस चित्र को अपने सामने रखें। That Jesus always stands in front of us, expecting us to turn to him. कि यीशु मसीह हर समय हमारे सामने खड़ा होता है, ये अपेक्षा करते हुए कि हम उसके पास मुड़े। Especially when we are down. विशेषकर जब हम नीचे होते हैं। Verse 5, this is very encouraging words. Jesus said, "Children, you do not have any fish, do you?" Jesus asked. और पांचवा वचन ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन का वचन है। यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? In fact, Living Bible says, "Any fish, boys?" he asked. और लिविंग बाइबल के अनुवाद में लिखा है कि बच्चों, क्या तुमने कोई मछलियां पकड़ी है? But actually, Jesus knew very clearly that whole night they tried and they didn't get any fish. और असलियत में तो यीशु मसीह अच्छे से जानता था कि रात भर इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बावजूद इनको कुछ मछलियां नहीं मिली है। Especially those who are not born again and finding difficult to understand, Jesus knows that you are struggling. विशेषकर जिनका नया जन्म नहीं हुआ है और वे समझने को संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह जानता है कि आप संघर्ष कर रहे हो। And also those who are in the pursuit of following the Lord and finding difficult, Jesus knows that you are not caught any fish, or in other words, you are not progressed as you desired. और उन लोगों के विषय में भी जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उसका पीछा करना चाहते हैं, और अगर आपने अपने जीवन में चाहिए वैसा विकास नहीं किया है, तो यीशु मसीह जानता है कि आप जैसा चाहते थे उतना आप नहीं बढ़े हो। But the beauty here is that Jesus was not angry. He asked some kind of a jovial or humorous question. और सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो एक मजाक में एक सवाल पूछा। And he said, have you come to a point where you understood something? He was just trying to communicate. और यीशु मसीह बस यही कहना चाहते थे, क्या तुम इस स्तर तक पहुंचे हो कि तुम थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? And then so long they all thought that if we can't follow Jesus, let us try our own way in the world. That's what they were thinking. और अब तक तो वे सोच रहे थे कि अगर हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते तो हम इस संसार में अपना अपना मार्ग खोज लेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। Or as a believer, let me settle myself to second level, second best, and just be a attender and go along with majority of the people. और या तो एक विश्वासी होने के नाते मैं एक निचले स्तर के साथ खुश रहूंगा, और ऐसे ही दूसरे लोग जो अधिकतर लोग चल रहे हैं उन्हीं की तरह मैं चलूंगा। And then verse 6, Jesus said something so amazing. Cast the net on the right hand side of the boat. और छठे वचन में यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, and you will find a catch. तो तुम मछलियां पाओगे। What is this right hand side? और ये दाहिनी ओर क्या है? There are so many things we can understand in this. और यहाँ से कई बातें हैं जो हम समझ सकते हैं।
I felt like, Lord, it's so good to stay with you. If you're with me always, I can ask you where to put the net instead of struggling for whole night. और मैं सोच रहा था कि प्रभु अगर हर समय मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, तो ये कितना अद्भुत होगा, क्योंकि मैं रात भर मेहनत करने के बजाय आपसे पूछूंगा कि जाल कहाँ बिछाऊं। This applies in all of our life. ये हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में लागू होता है। See, that's why there's something Bible says, uh, law came through Moses, grace came through Jesus Christ. और इसी वजह से बाइबल अन्य जगह कहती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, पर अनुग्रह ये यीशु के द्वारा आया। This grace is something which comes through Jesus, help from heaven. ये अनुग्रह ऐसा है जो यीशु के द्वारा आता है, स्वर्ग से आने वाली सहायता। We can call it power, we can call it help. हम उसको सामर्थ कह सकते हैं, हम उसको सहायता कह सकते हैं। So that is what we need to live our life each day. और हर दिन हमारे जीवन को जीने के लिए यही हमारी आवश्यकता है। God gives grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। So in other words, as Isaiah 57 says, God lives with the humble. दूसरे शब्दों में, जैसे यशाया 57 में लिखा है, परमेश्वर नम्र लोगों के साथ जीता है या रहता है। So how good the disciples had understood, maybe middle of the night itself, and said, Jesus, if you are around, and if you are not with us, we can't go forward, and unless you are there, we will not get a catch. If they had understood that, they would have cried out or waited on the Lord. और कितना अच्छा होता अगर 20 रात में ही शिष्य इस बात को समझ गए होते कि यीशु, अगर आप हमारे साथ नहीं हो, आप हमारे बीच में नहीं हो, तो हम इन मछलियों को नहीं पकड़ते। अगर वो नहीं पकड़ पाएंगे, अगर वो ये समझते थे, तो वो प्रभु का इंतजार करते या 20 रात में वो प्रभु को पुकारते। So there is a important lesson we can learn here for our whole life is, और यहाँ एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हम अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं, that if we depend on God in every area of our life, our personal life, our home life, our work life, even bringing up children, अगर हम परमेश्वर पर निर्भर हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे परिवार के क्षेत्र में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे जीवन के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को बड़ा करने के क्षेत्र में भी, if we wait on the Lord and expect Him to tell us what to do, then we can live an effective life. अगर हम प्रभु का इंतजार करेंगे, प्रभु की बाट जोहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो हमसे कहेगा कि क्या करना है, फिर हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। In fact, Jesus must have felt they should not be carried away with these fishes which they caught. और वास्तविकता में तो यीशु को ये लगा होगा कि जो मछलियां इन लोगों ने पकड़े हैं, इन्हीं मछलियों में इनका दिल नहीं लगना चाहिए। Further, we read that he was asking Peter, Peter, do you love me more than these things? और आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पतरस से पूछता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? That is what the Lord asks. Sometimes He blesses us with many things, but He is asking, is your heart in these things, whatever I have blessed? और यही बात कभी कभी प्रभु हमसे पूछता है। कई बार वो हमें कुछ आशीष देता है और फिर वो हमसे पूछता है, क्या तुम्हारा मन इन्हीं बातों में लगा है जो आशीषें मैंने तुम्हें दी है? So what we understand in this is the importance of waiting on the Lord. और इस भाग से हम यही समझते हैं कि प्रभु की बाट जोहना या प्रभु का इंतजार करने का महत्व। So what is the purpose of our waiting? और हमारा इंतजार करने का मकसद या कारण क्या है? That is to hear His voice. वो है उसकी आवाज को सुनना। Because there may be conflict in the home and challenge in bringing up children. There may be a struggle in personal life.
क्योंकि घर पे क्लेश हो सकता है, हमारे बच्चों को बड़ा करने में संघर्ष हो सकता है, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई हो सकती है। But very important to understand, if I listen to the Lord, things will go well. पर ये समझना बहुत जरूरी है, अगर मैं प्रभु को सुनूंगा तो बातें अच्छे से होगी। So otherwise, the other way is go for fishing. That means do my own ways, go my own way. इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है जाकर मछलियां पकड़ना। उसका मतलब मैं अपने अपने मार्ग पर चल देता हूँ। That's what we understand by the life of Moses. He was so expert at the age of 40. और यही बात हम मूसा के जीवन से भी देखते हैं। वो जब 40 की उम्र का था तब वो बहुत ज्यादा क्षमता से भरा हुआ था। So then God had to chase him away and bring him to a 0 point. और फिर प्रभु को उसको अलग ले जाकर उसको एक बिल्कुल शून्य के स्थान पर लाना पड़ा। So then Moses realized what happens if I just look to the Lord to do his work. और फिर मूसा ने इस बात को जाना कि क्या होता है अगर मैं सिर्फ प्रभु की ओर देखूं उसका काम करने के लिए। Even Jacob also pursued after his own strength. और याकूब भी अपने ही सामर्थ के पीछे चलते गया। But one fine day he realized, Lord, unless you bless me or help me, I cannot do anything. पर एक दिन याकूब को यह समझ में आया कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता, तू मेरी सहायता नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता। In other words, I can do many things, it will all amount to nothing. दूसरे शब्दों में मैं कर तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, पर उन सारे बातों से सिर्फ शून्य ही उत्पन्न होगा। That's what Jesus said in John 15. और यही बात यीशु ने यूहन्ना 15 में भी कही। 15 verse 5. यूहन्ना 15 उसका 5 वचन। I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So here what I can understand, we can understand is, we can do so many things, it all is nothing. और यहाँ से हम जो सीख सकते हैं, हम कर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो सारी बातें वो सिर्फ शून्य बनेंगी या कुछ नहीं होंगी। That's what Jesus was saying. Apart from me, you can do so many things, those are all nothing. और यही यीशु मसीह कह रहा था कि मुझसे अलग होकर तुम कर तो बहुत कुछ सकते हो, पर वो सब कुछ नहीं या व्यर्थ होगा। Yes, these are all, that's what we can understand here. और यही हम समझ सकते हैं। But good examples are Joseph and Daniel, who just dependent on God and they saw wonders. पर अच्छे उदाहरण है यूसुफ और दानियल, जो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर हुए और उन्होंने बहुत अद्भुत काम देखे। But when we see their life, it looked like it is going downward or in a wrong way. Like Joseph was betrayed and sold and kept as a slave and kept as a prisoner. पर जब हम उनके जीवन को देखते हैं तब तो लगता है कि बातें बहुत ही बिगड़ रही है, क्योंकि यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने विश्वासघात करके उसको बेच दिया गया, वो गुलाम बन गया, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। And also Daniel was taken as a captive to Babylon. और दानियल भी बेबीलोन में बंदी बनाकर ले गया गया था। So, but they never stopped depending on God. पर उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर निर्भर होना रुकाया नहीं। That's why we see that their life was quite consistent, and also it says God was with them. और इसलिए हम देखते हैं कि उनका जीवन जो था वो बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंट था और परमेश्वर उनके साथ था। So that is what we can desire, brothers and sisters. और इसी बात की हम चाहत या लालसा कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। So let us give up that attitude of I go for fishing. That means I do my own way. और इसलिए हम उस रवैये, उस मनोभाव को छोड़ दे कि मैं मछलियां पकड़ने जाता हूं, मतलब मैं अपनी ही इच्छा, अपना ही मार्ग चुनना छोड़ देता हूं।
or I resign myself and I'll be an ordinary brother, or because God cannot do much from my life. या मैं हार मानकर ये कह देता हूं कि हाँ मैं तो बस एक साधारण भाई बनकर रहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन द्वारा ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा. But all these people whom we talked about were ordinary people, but God did something when they trusted the Lord. पर ये सारे लोग जिनके विषय में हमने बात की ये सब साधारण ही लोग थे, पर परमेश्वर पर जब वो निर्भर रहे और भरोसा किया तब परमेश्वर ने उनके द्वारा कुछ अद्भुत किया. Then I was thinking about what Jesus said, cast your net on the right side. और मैं सोच रहा था जो यीशु ने कहा कि अपने जाल को तुम दाहिनी ओर डालो. May the Lord help us to understand his voice, that where to cast our nets each and every day. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी आवाज को सुन पाए, समझ पाए कि हर दिन हम अपने जाल को किस ओर डालें. Or in other words, how to find grace in the time of need. या दूसरे शब्दों में आवश्यकता के समय अनुग्रह को हम कैसे पाए. So the first thing I see is, instead of resigning myself, I can seek something, a few things. I have some list here. I can seek some things. Yeah, please translate, brother. और पहली बात यह है कि अपने हार मानने के बजाय मैं कुछ बातों की खोज कर सकता हूं. So how to cast my nets on the right side? और अपनी जाली मैं दाहिनी ओर कैसे डालूं. So how I can cast my net on the right side? और सही जगह पर मैं अपने जाल को कैसे डाल सकता हूं. So first thing we can see that being filled, seek to be filled with the Holy Spirit. और पहली बात जो हम देखते हैं वो है कि हम ये खोज करें कि हम पवित्र आत्मा से भरे. So this is something which I need to pursue, or in other words, wait on the Lord until God really honors me. और ये एक ऐसी बात है जिसको मुझे खोजना है या मुझे प्रभु पर तब तक इसके लिए इंतजार करना है जब तक प्रभु वास्तविकता में मेरा वो देकर आदर ना करे. That is one of the way we can cast our nets on the right side. और ये एक तरीका है जिससे हम अपने जाल को सही जगह डाल सकते हैं. See, like we have heard Brother Zach testifying many times how God filled him with the Holy Spirit and the whole of his life direction changed. और जैसे हमने भाई जैक को कई बार ये गवाही देते हुए सुना है कैसे परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भर गया और उनके जीवन की पूरी दिशा बदल गई. Another place where we can find casting our nets right is pursuing after mind of Christ. और दूसरी जगह जहां हम अपने जाल को सही जगह डाल सकते हैं वो है मसीह के मन के पीछे, मसीह के मन को खोजना. So becoming like Jesus, the desiring to be like Jesus. और यीशु के जैसे बनना, ये लालसा, ये चाहत रखना कि हमें यीशु जैसा बनना है. Not to give up on this. और इस बारे में हार ना मानते हुए. See, the disciples, they pursued, they didn't give up midnight, early morning, till early morning until they found Jesus. They didn't stop fishing. और वे जो शिष्य थे उन्होंने मछली पकड़ना रोका नहीं, बीच में रात के बीच में उन्होंने छोड़ा नहीं, सुबह तक भी जब तक यीशु मसीह नहीं आया उन्होंने मछली पकड़ने से वो दूर नहीं हटे. But they understood something on that day, that we pursue so much for these things of the world. But instead of that, if we seek the Lord and his character, then things will change much faster. और फिर उस दिन उन्होंने एक बात को जाना कि इन संसार की चीजों के पीछे इतना दौड़ने से अगर हम प्रभु के पीछे जाएं और उसके गुण या उसके चरित्र को खोजने की कोशिश करें फिर हमें बातें जल्दी बदल सकती है. That's what Jesus was mentioning in Matthew 6, that if you seek God's kingdom and his righteousness, all these other things will be added to you. और इसी बात का जिक्र यीशु मसीह मत्ती 6 में कर रहा था, अगर तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी.
Um, in other words, these are all essential, but don't seek after these things. Gentiles seek after these things. और दूसरे शब्दों में ये सारी बातें जरूरी तो है, पर इन बातों के पीछे मत जाना, क्योंकि ये बातों के पीछे तो अन्य जाति लोग जाते हैं। Learn to cast the net on the right side, right place, or other words. और अपने जाल को सही जगह पर डालना सीखो। So instead of pursuing name and fame in the world or in the church, to be in the good book of elders, instead of that, we can pursue after being filled with the Holy Spirit. That will change our life. और इस संसार में या कलीसिया में एक अच्छा नाम पाना या अच्छी कीर्ति पाने के पीछे जाने से बेहतर है कलीसिया में जो प्राचीन है वो मेरे विषय में अच्छा सोचे, इसकी खोज करने से बेहतर है कि हम पवित्र आत्मा से भरने की खोज करें। That will make a difference to our life before God. और परमेश्वर के सामने जो हमारा जीवन है उससे उसमें एक बदलाव आएगा। That's what Paul was encouraging Timothy. Watch your own life. That's what. One second, I'll just 1 Timothy chapter 4. और इसी बात का प्रोत्साहन पौलुस तिमुथियुस को दे रहा था। पहला तिमुथियुस उसका 4था अध्याय verse 16. 16वां वचन। Pay close attention to yourself अपनी चौकसी रख and your teaching. अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। So your teaching means not really words, but his life. और तुम्हारा उपदेश मतलब उसके शब्द नहीं बल्कि उसका जीवन। So through his life he can be teaching others, means somebody is learning something from our life. और उसके जीवन के द्वारा वो दूसरों को सिखा सकता है, इसका मतलब हमारे जीवन के द्वारा कुछ लोग कुछ सीख सकते हैं। For example, I have seen some brothers hanging around with some half-hearted people in the church. और उदाहरण के तौर पर मैंने देखा है कुछ भाई जो है जो कलीसिया में आधे हृदय से आने वाले लोग हैं उनके साथ समय बिताते हुए what happens, they keep learning unbelief from them or something which is not so good because they don't mingle with wholehearted brothers. और मैंने देखा है कि वो इन दूसरे भाइयों से या तो अविश्वास सीखते हैं या दूसरी बातें सीखते हैं क्योंकि वो पूर्ण हृदय लोगों के साथ समय नहीं बिता रहे। Gradually what we see is their life keeps going down, their faith keeps going down. धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनका जीवन नीचे नीचे जाने लगता है, उनका विश्वास नीचे जाने लगता है। What Paul is saying is, Timothy, keep alert about your own life. By your life, other people will be learning something from you. और पौलुस कह रहा है कि तिमुथियुस तू अपने जीवन की चौकसी रख, उस पर सावधान रह क्योंकि तेरे जीवन के द्वारा लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। This is something like putting the net on the right place. और ये भी एक उदाहरण है कैसे हम अपने जाली को सही जगह डालें। So then the catch will be more. और फिर हम ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे। So what is the catch here? The catch is, as you do this, you will ensure salvation both for yourself and those who hear you. और यहाँ वो मछलियां पकड़ने का अर्थ क्या है? 16वां वचन, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So that is the catch for eternity. और ये तो अनंत जीवन के लिए पकड़ी हुई मछलियां हैं। Jesus said once, I will make you fishers of men. और एक समय यीशु ने खुद कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। So we can help people in an earthly way with so many things, but if we help them to get right with God for eternal benefit, that's the great catch. और हम लोगों की इस पृथ्वी पर उनकी कई आवश्यकताओं के लिए सहायता कर सकते हैं, पर अगर हम उनकी ये सहायता करें कि वे परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाएं तो ये बहुत ज्यादा हमने मछलियां पकड़ी है। And also in this connection we can see that we should seek after life, not only knowledge. और इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमें जीवन की खोज करनी है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की खोज नहीं करनी। So because I have seen certain brothers in our own church having so much Bible knowledge and listening to so many messages, YouTube messages, but their effectiveness to help the church is less.
क्योंकि मैंने हमारे भी कलीसिया में कई भाइयों को देखा है जो इतना बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जो यूट्यूब पर इतने संदेश सुनते हैं, पर उनकी कलीसिया में जो दूसरों को सहायता करने के जो प्रभाव है वो बहुत कम है। because they were uh, trying to catch fish on their own whole night. They struggle. I don't know. They may get something, but if they listen to the Lord, their life will be more effective and useful. क्योंकि वो अपने आप मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, पर अगर वे प्रभु की बात सुने, आवाज सुने, तो उनका जीवन ज्यादा उपयोगी होगा। And another way, right way to put the net in the right place is pursuing after humility. और दूसरा तरीका जिससे हम सही जगह जाली डाल सकते हैं वो है नम्रता के पीछे चलना, खोजना। We have heard this so many times. Seeking after humility makes a big difference to our life. और इस बात को हमने कई बार सुना है कि नम्रता की खोज करना ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लाती है। But it doesn't come naturally. पर ये स्वाभाविक तौर पर हमें नहीं आता। Naturally, we are selfish and proud people. स्वाभाविक तौर पर हम स्वार्थी और घमंडी लोग हैं। The humility which we have to ask the Lord to help us to go that way. और नम्रता के लिए हमें प्रभु को सहायता मांगनी है ताकि हम उस मार्ग पर चल पाए। See, these disciples also, they were so confident, thinking that they can do something. Purposefully, the Lord made sure that they didn't catch any fish. और ये जो शिष्य थे, इनको भी खुद पर इतना भरोसा था कि वो अपने आप कुछ कर पाएंगे, पर प्रभु ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अपने आप से वो कोई मछलियां ना पकड़े। To teach them one thing, humble yourself and come to me, I will help you. उनको एक बात सिखाने के लिए कि अपने आप को नम्र करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। It becomes very easy. फिर वो बहुत आसान हो जाता है। So we read that in Matthew 11. हम इसी बात को मत्ती 11 में पढ़ते हैं। Matthew 11:28 is a well-known verse. मत्ती 11:28 ये जाना माना वचन है। I want to learn this secret to putting the net on the right place. मैं इस रहस्य को सीखना चाहता हूं कि मैं अपनी जाली को सही जगह डालूं। Jesus said, "Come to me, all who are heavy and heavy laden." Verse 28. और यीशु मसीह ने 28 वचन में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So I will just tell you what you should do. That's all you do it. Your life will be more effective. और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, बस तुमको उतना ही करना है और तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। Are you not tired of doing so many things, trying to impress? Maybe before born again, you are trying so many ways to improve your life. It is not happening. Maybe in the church, you are trying to do so many things to improve your Christian life. It is not happening. Have you not understood? और यीशु कहता है, क्या तुम थक नहीं गए? अपने ही जीवन को बेहतर करने की ये कोशिश है या दूसरों पर छवि बनाने की? शायद नए जन्म से पहले तुम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ। अब नए जन्म के बाद भी तुम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, वो भी नहीं हो रहा। क्या तुम अभी नहीं समझे हो? The only one word Jesus says is, "Come to me. Just come to me. Don't try to solve your own problem." और यीशु मसीह बस एक ही शब्द कहता है, मेरे पास आओ, बस मेरे पास आओ। अपनी समस्या का हल खुद ढूंढने की कोशिश मत करो। Take my yoke upon you. Verse 29. 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Learn from me. और मुझसे सीखो। I am gentle and humble in heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। You shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my load is light. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। So this is the best way we can put our net in. That means we wait on the Lord and wait for Him to tell what to do. और ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिससे हम अपने जाली को सही जगह डाल सकते हैं। मतलब हम प्रभु का इंतजार करते हैं और प्रभु को कहने देते हैं कि हमें क्या करना है। And also another area we can see is going the narrow gate and narrow way.
और दूसरा एक क्षेत्र जो हम देख सकते हैं, उस सकरे फाटक से प्रवेश करना और सकरे मार्ग पर चलना। So what is that narrow way and narrow gate? और वो जो सकरा मार्ग है, सकरा फाटक है, वो क्या है? It is just simple. It is repentance and faith. और उसका साधारण मतलब है मन फिराना और विश्वास करना। So these two are required in to begin our life till the death. और ये दो चीजों की आवश्यकता है हमारे जीवन की शुरुआत करना और हमारे मृत्यु तक इन दो बातों की आवश्यकता है। So we have to repent from our own ways और हमें अपने ही मार्गों से मन फिराना है and also come to him and say, Lord, just tell me, I will do it. और उसके पास आकर कहना है, प्रभु बस आप बताइए और मैं उसको करूंगा। I think in Exodus 40, where Moses followed exactly as the Lord commanded, and the glory of God came upon the tent. और हम निर्गमन 40 के अध्याय में पढ़ते हैं, जब मूसा ने वे सारी बात की उस निवास मंडप के बनाने में जो प्रभु ने कही थी, तब प्रभु की महिमा उस निवास मंडप पर आई। And also one of the area I can think is to casting the net on the right side is seeking fellowship in the church. एक और क्षेत्र जो मुझे याद आता है कि अपने जाली को सही ओर डालना, वो है कलीसिया में संगति को खोजना। So fellowship with the right kind of brothers and sisters. सही तरह के भाइयों बहनों के साथ संगति करना। Then these are the areas we can cast the net on the right place. और ये वो क्षेत्र है जहां हम अपने जाली को सही जगह डाल सकते हैं, so that our life will be effective for the Lord. ताकि हमारा जीवन प्रभु के लिए प्रभावी हो। That's why the God's word says, delight yourself in the Lord. He will fulfill all your heart's desires. और इसी वजह से प्रभु का वचन हमें कहता है कि अपने मन को हमें प्रभु में आनंद बनाना है और वो हमारे हृदय की हमें इच्छाएं देगा। So Jesus was watching all these disciples trying hard whole night. और यीशु मसीह इन सारे शिष्यों को देख रहा था कि वे रात भर मेहनत कर रहे हैं। He was not angry. वो गुस्सा नहीं था। Even today, he's not angry with anyone. और आज भी वो किसी से भी गुस्सा नहीं है। So he's asking us to delight in him and rest in him. Come to him and just do what he says. और वो हमसे कहता है कि हम उसमें आनंद मनाएं और उसमें विश्राम पाए, बस उसके पास आकर वो जो कहता है वो करे। Not to impress anyone, not to be like anyone, nothing like that. किसी पर छवि बनाने की कोशिश नहीं करना, किसी के जैसा बनने की भी कोशिश नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं। Just to like Mary did, just sit at his feet and listen to him and do what he says. और जैसे मरियम ने कहा, जैसे मरियम ने किया, वैसे यीशु के पैरों के पास बैठना और उसको सुनना। May the Lord really help us in this area. और प्रभु इस क्षेत्र में सही में हमारी सहायता करे, so that we will be kept from all the frustration and disappointments. ताकि हम सारे निराशा से दूर रहे। So all those who are born again, we all can be an encouragement to those who are not born again. और हम सब जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, उनके लिए हम एक प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। We can be witness of the fact that we can be at rest no matter what happens. We just do what the Lord says and things will get right. और हम इस सत्य के गवाह बन सकते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम विश्राम में रहते हैं, हम प्रभु का इंतजार करते हैं और बातें सही बन जाती हैं। So in the Cana wedding, all the wine got over. Nothing to worry. Just do what the Lord says. और जैसे उस काना के विवाह में सारा दाखरस खत्म हो गया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस वही करो जो प्रभु कह रहा है। That's all Mary said to the servants. Just do what he says. और वही मरियम ने उन सारे दासों को कहा, बस यही करो जो यीशु तुमसे कहता है। May the Lord help us to cast our net in the right place. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जाल को सही जगह डालें। That means to seek after the things which is of rest or which comes from the Lord. इसका मतलब उन बातों की खोज करे जो विश्राम की बातें हैं या जो बातें प्रभु की ओर से आती है।
So many times, if we go with frustration to the Lord, He may say, "Don't worry, just come and sit, relax." कई बार अगर हम बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन लेकर प्रभु के पास जाए तो प्रभु यही कहेगा कि चिंता मत करो, आराम करो और बैठो। So in fact, here, John 21 also, we see that He had already prepared the breakfast and told them, just come and give some fish also. I already prepared breakfast for you. और जैसे हम यूहन्ना 21 में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले से ही उनके लिए भोजन तैयार करके रखा था। जब वे किनारे आए तो उसने कहा कि तुम्हारी भी कुछ मछलियां लाइए। See, I know you are all tired. I knew, but now you don't have time. I have already prepared the breakfast for you. मैं जानता हूं कि तुम सब थक गए हो, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने पहले से तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। So that is our Lord. और ये है हमारा प्रभु। May the Lord help us to come out of all the unrest and frustration and walk with Him. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सारी बेचैनी, सारे फ्रस्ट्रेशन से दूर निकलकर उसके साथ चले। Because as we go forward in this world, there will be so much confusion and turmoil. Things may go wrong in many ways in the external world. क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाता है, इस संसार में बहुत क्लेश होंगे, बहुत सारी गड़बड़ होगी। I think we must learn just to listen to His voice and just do that, and we find good catch. मुझे लगता है हमें ये सीखना है कि हम बस उसकी आवाज को सुने, उसकी इच्छा करें और हम पाएंगे कि हमने बहुत मछलियां पकड़ी है। What is the good catch? Life of rest and peace. और वो बहुत मछलियां पकड़ना क्या है? एक विश्राम और शांति का जीवन। By that we can be a good witness for the Lord. और इसके द्वारा हम प्रभु के लिए एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। This is only possible when we are filled with the Holy Spirit. ये केवल तब ही संभव है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। And Jesus is eager to fill us with His Spirit. और यीशु मसीह की ये लालसा है कि वो हमें अपने आत्मा से भरे। So we may be at the sea trying to catch, but He is waiting at the shore, waiting for us. और शायद हम उस समुद्र में हैं, मछलियां पकड़ने के लिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पर वो किनारे पर हमारा इंतजार कर रहा है। Let us go to Him and have breakfast with Him. आइए हम उसके पास जाएं और उसके साथ नाश्ता करें। Amen. आमीन।